Now, motion actually, let's say um, you are traveling a journey, okay? You are moving from one point to another point in a journey. Let's say this is your home and this is your school. And you are moving from your home to your school, okay? So the road is actually like this, and you are traveling on this road, on this path to reach the school. And in between this home and school, there is another thing which is called a shop. Let's say you want to buy some lunch from that shop, and then you move towards your school. So this is you moving all the way on this path, and you reach the school. So this is your path actually, okay? And this path has some length, okay? So path length. Now, when you are traveling on this path and this path has some length, you will say that when you are moving on this path, you are traveling a distance. So the first and the most important thing about motion is distance. What is distance? Distance is basically what you can say it is a path length. It is a path length between two or more points. Okay. तो whatever the path you have taken, जो भी आपके रास्ते की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, जिसके ऊपर आप ट्रेवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, that path length is actually known as distance. So what is distance? It is path length between two or more points. तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो जितना लंबा रास्ता होगा आप उस रास्ते पे चलोगे, तो यू विल से दैट आई एम मूविंग ऑन दिस पाथ, सो इट मींस आई एम ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस. ओके. Distance can be represented by a symbol d, and since it's a length, ये एक लेंथ है, तो इट मींस दैट इट हैज अ यूनिट ऑफ मीटर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है. सो वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. उसका यूनिट क्या है? मीटर, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल m. नाउ since you are continuously changing your direction, so that's why it is not a scalar, a vector quantity, it's a scalar quantity. ठीक है? Distance एक scalar quantity. Okay. So what is the distance? Whenever you are traveling on a journey, there is a path actually on which you are moving, and whatever the path of the whatever the length of the path is, that is actually called your distance travel. Okay. और ये टेढ़ा फेढ़ा ऊपर नीचे जैसा भी होगा रोड, उसके मुताबिक आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो चल रहा होता है. अच्छा, उसके बाद एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखिए, you started this journey and this is your starting position. This is your starting position. You started a journey from your home to the school. So this is your starting position, and you travel all the way home towards the school. So this is the end of your journey. So this is the ending position. Okay. So this is the ending position of your journey, which means when you done this journey moving from home to school, you have changed your position. Starting में आपकी position आपका घर था, और अब आपकी position जो है finally जर्नी करने के बाद आपका position जो है वो school है. So it means you have changed your position, and the change in position is called displacement. What is displacement? It is the change in position between 2 points.
यू नोटिस दैट ओवर देयर दैट इट इज टू और मोर पॉइंट्स, डिस्टेंस में टू और मोर था, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स थे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में इट इज अ चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है जी, और ये टू पॉइंट्स कौन से हैं? ऑब्वियसली द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द एंडिंग पोजीशन ऑफ योर जर्नी। So what is displacement? Whenever you are changing your position, okay, it means you have done some displacement. If you do not change your position in a journey, it means there is no displacement. ठीक है? Which means if you start from a point and you return back to the same point, you are not changing your position, so it means your displacement is zero. उसके ऊपर अभी आते हैं, उस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। बट अप टिल नाउ ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ डिस्कस की है। डिस्टेंस, इट इज द पाथ लेंथ बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स। जिस रास्ते पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस ट्रेवल करते हुए रास्ते की जितनी लंबाई है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। ओके, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, while the change in position between 2 points is called displacement. ठीक है, इसको नोट डाउन करें, then we'll move forward. Displacement some have some more characteristics. We are going to write those characteristics as well, and then we will decide what should be the unit of distance, what should be the quantity distance, should it be scalar, should it be vector, ये सारी चीजें हम इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को लिख के फिर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? इसमें कोई सवाल किसी को? मोइजा, फातिमा, अलीजा, अबसार, एनी क्वेश्चन? Okay, can you please write it down, and when you are done, please let me know, okay? Okay. Now, what are the other characteristics of distance? Let's write it down. So it is a change in position between two points. दो points के दरमियान में position के change को displacement कहते हैं। How we can obtain the displacement? Displacement कैसे मिलती है? So displacement को लेने के लिए बच्चों आप लोग क्या करोगे? You will join the starting position and the ending position with a straight line. आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को एंडिंग पोजीशन से जब एक सीधी लाइन से जोड़ दोगे, तो ये जो सीधी लाइन है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट शो कर रही होगी। ठीक है जी, इसको दो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस टू एरोज एक्चुअली शो दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो इट कैन बी obtained by joining starting and ending position with a straight line। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को जोड़ दें, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, विच मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, इट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस ट्रेवल टेढ़ा फेढ़ा हो सकता है, but displacement cannot be bended. It will always be in a straight line because it is always directed towards the ending position. What I'm saying, it is directed towards the ending position, which means it has a particular direction, and because it is directed towards, it is directed towards ending position, यानी इसकी डायरेक्शन एंडिंग पोजीशन की तरफ होती है। That's why it is a vector quantity. So it is directed towards ending position. So it's a vector quantity. यानी इसकी क्या डायरेक्शन होगी? इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द एंडिंग पोजीशन। जिस तरफ आप जा रहे हैं वो आपकी एंडिंग पोजीशन इसकी वो हो जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक और इसकी प्रॉपर्टी हम कभी कभार लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वन, दैट इट कैन बी the shortest
distance between two points। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब लेट्स से दिस इज द रोड एक्चुअली, यू आर मूविंग, आप अपने घर से स्कूल तक रोड के ऊपर जा रहे हो, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो। लेट्स से ये आपकी कार है, ठीक है, और ये कार जो है ये इस रोड के ऊपर चलती 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 जा रही है और आप जो है वो अपने स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अब रास्ता ऐसा है, आपकी गाड़ी इसी रास्ते पे चल सकती है। अब लेट्स से इफ यू आर वेरी रिच, आप बहुत अमीर आदमी हैं और आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर जब आपके पास होगा तो हेलीकॉप्टर के केस में आप अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और यूं सीधे चलते चलते स्कूल पे जाके उतर जाएंगे। उस केस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। यू नीड डोंट नीड अ रोड बिकॉज यू नो यू हैव अ हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर होने की वजह से आप सीधे जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ले सकते हैं, सीधा ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो सीधा ट्रेवल करना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टेयर्स पे से जब उतरते हैं तो स्टेयर्स कैसे आती हैं, स्टेयर्स यूं जा रही होती हैं, पहले यूं आती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं जाती हैं। इस तरीके से सीढ़ियां जो है ना किसी बिल्डिंग के अंदर इस तरीके से मूव कर रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इफ यू हैव अ लिफ्ट, तो लिफ्ट आपकी कैसे जाती है, लिफ्ट बिल्कुल सीधी जाती है, यहाँ से यहाँ तक सीधी जाएगी। तो लिफ्ट आपकी क्या कर रही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही होगी। और आप अगर सीढ़ियों के ऊपर स्टेयर्स पे वॉक करते हुए ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो it means you are traveling a distance. So this can be the difference between distance and displacement. Displacement टेढ़ा फेढ़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, but displacement is always a shortest distance and it is always in a straight line. अब इस fourth property को if you read it again, it can be the shortest distance because it is also a distance. ये भी एक distance ही है, shortest distance है। तो because of that इसका यूनिट हम कंसिडर करेंगे मीटर। यानी कि आपके डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, बट डिस्टेंस इज ए path length, but displacement can be the shortest distance between two points, and it is always in a straight line. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Displacement एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए हम एक क्वेश्चन भी अभी करेंगे, एक इजी सा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो कैन यू प्लीज नोट इट डाउन, कोई सवाल है इसमें किसी को पूछ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर हो गई है जी? आयशा, फातिमा, अलीजा, अबसार, इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसमें आपकी पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। बट if the path position is not changing, basically it is distance travel, ठीक है। ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, regarding the videos of this class, yes, Aliza asked me about the video of this class, so I will send you on this WhatsApp on this video. But actually, I'm organizing all these videos and uploading on a Google Drive, so I can share a link with you all for the Google Drive, ताकि फिर आप लोग को जो वीडियो जब भी एक्सेस करनी हो आप लोग वहाँ जाके गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीकेंड पे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा और उसके बाद से जो भी वीडियोज होंगी वो उसी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाया करेंगी। तो आप लोगों को अगर दोबारा से वो देखनी है तो वहीं से जाके यू कैन सी इट अगेन, बार बार आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स डू अ क्वेश्चन टू टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। ये एक सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल जो है
अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरा वन सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। एक सर्कल जो है, एक पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है, विच इज नोन एज सरकमफेरेंस। ठीक है, ये चीज पता है आप लोगों को कि वन सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, विच इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सबको पता है बात या नहीं पता? फातिमा एंड अलीजा, बेटा डू यू नो दिस थिंग? अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। अब आपको पता चल गया कि एक पूरा सर्कल, ये जो सर्कल की एक बाउंड्री होती है, ये सर्कल की बाउंड्री जो है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। और ये आर जो होता है बच्चों, ये आर जो होता है, दिस इज आर इज रेडियस। इस आर को हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस आप सबको पता होगा, सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। ऑब्वियसली रेडियस जितना बड़ा होता जाएगा, आपका ये जो चक्कर है उतना बड़ा होता जाएगा, दिस सर्कल विल बिकम लार्जर एंड लार्जर, विच मींस योर सरकमफेरेंस विल बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। नाउ द क्वेश्चन इज, कंसिडर अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम टॉप व्यू। कंसिडर कीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, और आप उसको कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, एरियल व्यू दे रहे हैं, बर्ड आई व्यू है, मतलब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो कंसिडर दैट दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक को आप ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज द कार। ये कार है। ये कार जो है वो अभी ए पॉइंट के ऊपर है। किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट। द कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए लाइक दिस, ये इस तरीके से ट्रेवल की, और ट्रेवल करते करते यहाँ आ गई बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जहां से ये स्टार्ट की थी, विच मीन्स इट इज टोटली अपोजिट डायरेक्शन जहां से ये स्टार्ट हुई थी, और ये दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कार, मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो कार जिस रास्ते पे चल रही है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कितना है, 5 मीटर्स का उसका रेडियस है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी पॉइंट। गाड़ी ए से बी पॉइंट तक चलती है, और ए से बी पॉइंट तक गाड़ी के चलने में आपको उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, और आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। ठीक है जी। तो देखें, गाड़ी जब यहां से यहां चलेगी, और से देखिएगा ये, तो ये जो गाड़ी यहां से यहां तक चली है, क्या ये उसने फुल सर्कल ट्रेवल किया है या हाफ सर्कल ट्रेवल किया है? जी, जब गाड़ी यूं यहां से यहां तक गई है, हाफ। सो दिस बेसिकली हाफ सर्कल। ठीक है, ये हाफ सर्कल। एग्रीड है भाई सब इससे? मोइजा, फातिमा, अलीजा, हाफ सर्कल ट्रेवल हुआ है ना? ओके, अब हाफ सर्कल कैसे निकलेगा? हाफ सर्कल जो है दैट विल बी सरकम फेरेंस डिवाइडेड बाय 2। आधा कर दें, है ना? सरकम फेरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो सरकम फेरेंस को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हाफ होगा। अच्छा, गाड़ी ने ये रास्ता लिया है, सो दिस इज द पाथ टेकन बाय द कार, दिस इज द पाथ, ये उसका रास्ता है। ठीक है ना? तो कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी
2 पाई आर जो कि सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया। डिस्टेंस जो होगा इस गाड़ी का, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर चली है इसलिए इसको डिस्टेंस कह रहा हूँ, दैट विल बी पाई, और आर कितना गिवन है 5, पाई इंटू 5, यानी आप पाई जो होता है वो 3.14 होता है। अगर आप कैलकुलेटर में 3.14 या पाई पंच करके मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द आंसर? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15.7। सो डी इज इक्वल टू 15.7 मीटर्स। यानी इस गाड़ी ने ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 15.7 मीटर्स। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ए से बी तक जाने में इस गाड़ी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन ए टू बी? एनीवन? ये तो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, क्योंकि इस रास्ते पे गाड़ी चली है। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। But can anyone tell me what is the displacement of the car? Will it be same as 15.7 centimeter? Yes. Moiza, what will be the displacement of the car? How we can obtain the displacement? Yes, it's 10. We can actually obtain the displacement by joining the starting and the ending position with a straight line. हम ये सीधी लाइन से जोड़ेंगे। तो जब आप ये इसको सीधी लाइन से यहाँ जोड़ोगे तो ये भी रेडियस, which means this will be displacement is twice of radius, है ना? रेडियस का ट्वाइस होगा, जिसको आप लोग जानते हैं डायमीटर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायमीटर। ठीक है ना? डायामीटर। ठीक है जी। तो ये डायमीटर है। ओके। और ये बेसिकली अगर आपका रेडियस 5 है और ये भी 5 है तो टोटल आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर्स हो जाएगी। दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। So you can see that in a same journey a car is traveling, its distance travel is difference, which is 15.7, which is quite longer, and the distance travel is only displacement is only 10 meters. Okay. So this can be a very good question to understand what is the difference between distance and displacement. Okay. ये clear हुआ है? Absar and Aliza, is that clear कि ये 10 कैसे आया डिस्प्लेसमेंट के अंदर? Aliza, ठीक है। So this is your distance travel and this is your displacement. Can you please note down this question and then we'll move on to the next question. कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिए मुझसे। अभी कोई चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। एनीवन? No, it's not necessarily. Displacement is not always same as diameter. In this particular situation, the displacement and the diameter is same. ठीक है। लेकिन अभी मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ सर। तो उसमें आप देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप मुझे बताइएगा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। ठीक है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को सीधी लाइन से ज्वाइन करने से मिलती है। तो इस केस में जब हमने ज्वाइन किया तो वो डायमीटर के बराबर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर। अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायमीटर के बराबर हो। ठीक है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन?
When you are done, please let me know. All right. Now, the second part of the question is the question still continues. The second part, let's say part B, they are asking. This is the same circular track. This is the car. It is at point A. It travels from point A and it return back to point A. Car travel from point A and return to point A. गाड़ी ए से चली वापस ए पे आ गई. What is the distance travel and displacement of car? तो गाड़ी ए से चली ए पे वापस आ गई. आप अब मुझे बताइए कि इस गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा. रेडियस अभी भी कितना है, 5 मीटर्स ही है. तो अब बताइए कि डिस्टेंस जो है, गाड़ी अब क्योंकि पूरा सर्कल चली है, कार ट्रेवल द होल सर्कल, दिस इज द पाथ, ये वो रास्ता है जिस पे वो चली है. सो दैट्स व्हाई योर डिस्टेंस विल बी इन दिस केस द कंप्लीट सर्कमफेरेंस व्हिच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है जी. तो डिस्टेंस दिस टाइम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 5, जो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 31.4, आई गेस, है ना. दैट विल बी समवेयर लाइक 31.4. ठीक है. तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा. बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार नाउ? Aliza, what will be the displacement of the car now? Absar, what will be the displacement? The car started from A, returned to point A. What will be the displacement? Zero. Yes, good, Moiza. Why it's zero? Can you explain? Yes, because it returned to the same position, or we can say that it has not changed its position. जो स्टार्टिंग पोजीशन थी अभी भी वही पोजीशन है, जहां से चली थी वही वापस आ गए. तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, जीरो है, 0 मीटर्स है. तो इसका क्या मतलब है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो पॉइंट ये है कि इफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इज सेम इन अ जर्नी, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. अगर किसी भी जर्नी में आप जहां से स्टार्ट किए हैं वापस वहीं आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगी. ठीक है जी. इसका मतलब ये है कि आप सुबह अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर आ जाते हैं, तो डेली बेसिस में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है. लेकिन आप डेली बेसिस पे क्या ट्रैवल कर रहे होते हो, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हो. स्कूल तक जाते हो फिर वापस आ जाते हो. तो अल्टीमेटली इन अ डे योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो बिकॉज योर एंडिंग पोजीशन इज ऑलवेज योर होम. बट यू ऑलवेज ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस जरूर ट्रेवल कर रहे होते हो. तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ऐसी जर्नी हो जिसमें आपने बहुत सारा डिस्टेंस तो ट्रेवल किया हो, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगी. ठीक है. अब सर, इज इट क्लियर नाउ कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट हर दफा डायमीटर नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट को आप स्ट्रेट लाइन से ऑब्टेन करते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन से. अलीजा, अगर हम यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश भी करेंगे तो लाइन बनेगी ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है. तो इसका मतलब है जब लाइन नहीं बन रही है तो आपका इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होगी. ठीक है. एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट?
सबको क्लियर है ये? ओके, कैन यू प्लीज नोट इट डाउन? अच्छा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि आई शुड स्टॉप द मीटिंग एट 30 minutes एंड रीस्टार्ट इट, बट वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने में एक्सटेंड हो गई है। तो इश्यू अब ये आएगा कि अब जब ये नए दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी तो इट विल स्टार्ट आफ्टर 9 minutes। ओके, 9 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, 9 मिनट्स का बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, आप लोग वॉशरूम हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर आ जाएं, और फिर हम लोग इसको जो है ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं ग्रुप पे ही आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, रीजॉइन द मीटिंग, जब तक ये चल रही है इसको चलाएं, ठीक है, मूव ऑन। फिर जब ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी तो फिर हम लोग उसके बाद 8-9 मिनट्स के बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। और सेम लिंक है ऑब्वियसली, उसी को ज्वाइन करना है आप सब ने। जी, ये कॉपी हो गया सबको? जी, एवरीवन डन? अफसार, अलीजा? ओके, so this is basically the difference between distance and displacement. We are going to discuss about another physical quantity. Achha, what is the difference between distance and displacement? Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance is